یہ خاص لوگوں کی عدالت ہوتی تھی، اور یہ ہے دیوان عام۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لیفٹ ہاتھ پر دیوان عام، یہ عام لوگوں کے لیے عدالت یا سنوائی ہوتی تھی۔ اور اس سائڈ کو دیکھیں تو یہ شیش محل ہے، شاہی قلعہ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے بادشاہی مسجد، اور بادشاہی مسجد کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں سامنے شیش محل نظر آ رہا ہے۔ ہاں، یہ پرانا نور جہاں والا شیش محل۔ ہاں، نور جہاں، ملکہ نور جہاں کا شیش محل۔ یہاں تک بھی دریا راوی پہنچ گیا تھا؟ اچھا، اب پیچھے چلا گیا ہے۔ دیکھیں مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ آپ نے کسی کو بتانا نہیں، اینک 200 میں لے جائیں۔ جو بچے ہم سے اینک لے کر جائیں گے وہ اسکول کالج میں فرسٹ آئیں گے، کالج کے بعد وہ بیٹے یونیورسٹی بھی جائیں گے، 4 GPA لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عباس، آپ دیکھ رہے ہیں KTV نیوز۔ آج میں موجود ہوں لاہور پاکستان کا دل۔ آج ویور دل پہ ہاتھ رکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھی دل لگ جائے۔ میں اسی ٹائم موجود ہوں یادگار شاہی قلعہ اور علامہ اقبال کا مزار اور بادشاہی مسجد آپ کو دکھائیں گے کہ اپنے دل کو تھام کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہنگائی کا دور ہے اور آپ کسی سے پیسے پکڑ کر آپ کو جلدی آنا نہ پڑے، کیونکہ آج کا جو ولاگ ہے، آج کا جو منظر ہے، بہت ہی پیارا مناظر ہیں، اور آپ کو یادگار کے مناظر دکھاتے ہیں اور بادشاہی محل کے مناظر۔ ناظرین، شاہی قلعہ بہت بڑا ہے اور ہم شاہی بگھی پہ بیٹھتے ہیں۔ تو اس دور کی شاہی بگھی تو یہ الیکٹرک بگھی ہے، تو پہلے دور میں شاہی بگھی اور ہوتی تھی، زمانے کے حساب سے شاہی بگھی اور ہے۔ چلتے ہیں ابھی بگھی پہ بیٹھ کر آپ کو شاہی قلعہ اور شیش محل دکھاتے ہیں، اپنے دل کو تھام کے رکھیں۔ ناظرین، ہم شاہی بگھی پہ بیٹھ گئے ہیں اور دیکھیں بغیر آواز کے۔ آپ کہاں سے ہیں جناب؟ میں سیالکوٹ سے۔ پہلی دفعہ ہے یا پہلے بھی کبھی؟ نہیں، فرسٹ ٹائم ہے۔ اچھا، فرسٹ ٹائم ہے۔ جی۔ کیسا منظر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، ابھی تو ہم بیٹھے ہیں، چلے آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ آپ کہاں سے ہیں جناب؟ جام شورو سے۔ جام شورو۔ اچھا، سندھ کراچی سے۔ یار جام شورو میں بھی تو بڑے بڑے قلعے ہیں، تاریخی ہے جام شورو۔ بالکل بڑی ترقی ہے، اور یونیورسٹی ہے، ہمارے سندھ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی۔ جی 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 جی۔ بڑے بڑے یونیورسٹی ہیں، تعلیمی ادارے ہیں ہمارے پاس۔ تو ابھی انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بادشاہ آئے ہیں، آخر فنا ہے۔ یہ نور جہاں کے محل بھی یہاں ہے، نور جہاں ملکہ نور جہاں کا محل بھی ادھر ہے۔ شاہ جہاں، نور جہاں۔ صحیح۔ آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں سندھ سے یا دوسری مرتبہ؟ اس کا مطلب ہے آپ بہاولپور کی کافی انفارمیشن رکھتے ہیں۔ دیکھیں مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ ویسے شاہی بگھی بھی اپنی جگہ پہ دل کرتا ہے کہ شاہی بگھی سے اتر کر ویور کو دکھائیں، مگر یہ ٹانگیں کام نہیں کرتی۔ تو سندھ سے تو لفظ مشہور ہے کہاں پہ ٹانگتی ہیں، ایسے نا کہاں پہ؟ ہاں، اب ہماری بھی کہاں پہ ٹانگ رہی ہے، اسی لیے ہم جو بگھی پہ بیٹھ گئے۔ پاکستان میں نیا جملہ آیا ہے نا، کہاں پہ ٹانگ رہی ہے، ایسے ہے نا؟ صحیح بات۔ تو ویور دیکھیں کہ آپ کے دیکھنے سے پہلے کہاں پہ نہ ٹانگیں، آپ انجوائے کریں، ہم بھی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں سامنے شیش محل نظر آ رہا ہے۔ ہاں، یہ پرانا نور جہاں والا شیش محل۔ ہاں، نور جہاں، ملکہ نور جہاں کا شیش محل۔ میں ڈرائیور حضرات کو بھی کہوں گا کہ ساتھ ساتھ ہمیں انفارمیشن دیں، کچھ بتا دیں تاکہ ویور بڑی ویٹ میں ہے شدت سے۔ یہ اب راستہ رائٹ سے۔ اچھا 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 یہ شاہی قلعہ کا فرسٹ ہے۔ اچھا، یہاں سے پہلے لوگ آیا کرتے تھے، سامنے بادشاہ کو ریکویسٹ کر۔ اچھا اچھا۔ دیوانے یہ دانا پہلے دکھایا ہے، اب 4 کلومیٹر کی ہے۔ صحیح ہے۔
अच्छा यहाँ तक भी ये दरिया रावी पहुंच गया था? अच्छा अब पीछे चला गया है और ये सामने मलका नूरजहां, ये खड़क सिंह की हवेली है, रणजीत सिंह का बेटा खड़क सिंह। खड़क सिंह। खड़क सिंह से खड़कती है खिड़कियाँ, हाँ खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। जी 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 सुना हुआ। क्या बात है जनाब, खड़क सिंह की हवेली भी देख ली। सर हर दीवान के दो दीवान, एक दीवाने आम, एक दीवाने खास। अच्छा ये दीवाने आम और दीवाने खास। यहाँ पे आम लोगों की, अच्छा ये आम लोगों की अदालत अलहदा थी और खास लोगों की अदालत अलहदा थी। अच्छा अब हम आम लोगों की अदालत में जाएंगे या खास लोगों की अदालत में? अच्छा आप तो हमें सबको जाने की इजाजत है, आम और खास। अच्छा सही सही। मेरे लिए तमाम व्यूअर मेरे लिए खास हैं कि अगर व्यूअर देख रहे हैं तो मैं साफ जाहिर है कि खुशी की बात है कि आज हमारे राइट साइड देखिए, उसमें है दीवाने खास। अच्छा ये पीछे जो है, मैं कैमरामैन को कहूंगा फिर पीछे दीवाने खास भी दिखा दें, ये सामने दीवाने खास है। दीवाने खास है। अच्छा खास लोगों की अदालत लगती है, जो बड़े लोग होते हैं ना मिनिस्टर, हाँ। इनकी अदालत इधर लगती है। अच्छा अब आप पहले म्यूजियम जाएंगे शीश में। अच्छा इसके बाद अब हम अब आप पहले म्यूजियम चलिए फिर शीश में। ठीक है अभी म्यूजियम चलते हैं, म्यूजियम के बाद फिर म्यूजियम शीश के बाद महल। हम चलते हैं। Ready, with back. अगर हम पैदल चलते तो काफी थकावट हो जाती। अच्छा ये भाई वॉक आपने खुद देखा। अच्छा ये साथ राइट साइड जाएंगे हाँ वो म्यूजियम नजर आएगा। सही। आप म्यूजियम देख सकते हैं ये है सामने दीवाने खास, ये खास लोगों की अदालत होती थी और ये है दीवाने आम। ये आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हाथ पर दीवाने आम, ये आम लोगों के लिए अदालत या सुनवाई होती थी। और इस साइड को देखें तो ये शीश महल है, तो ये मलका नूर जहां का शीश महल है। चलते हैं अभी आपको मलका नूर जहां का शीश महल। शाहजहानी। शाहजहां ये महल तो बहुत बड़ा है और थकावट काफ़ी हो गई है। ये नाज़रीन देख सकते हैं कि शाही किला के सामने देख सकते हैं, ये सामने बादशाही मस्जिद और बादशाही मस्जिद के साथ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है और ये बिल्कुल अटैच है। और ये हाथी दरवाज़ा, शाहपुर दरवाज़ा और शाही बुर्जी खाना और ये सारा मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये महल बहुत बड़ा है और ये आप महल के मनाजिर देख सकते हैं। सामने हाथी दरवाज़ा है और नीचे वाले पोर्शन में, और ये महल कितना पोर्शों में होगा ये पता नहीं कि नीचे कितना अभी नीचे है। हम ऊपर वाला हिस्सा तो देख सकते हैं ज़मीन में, नीचे वाला हिस्सा नहीं देख सकते। और ये टूरिस्ट आ रहे हैं सामने। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, खैरियत है? माशाल्लाह हमने पूरा शाही किला फिरा है, देखकर बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हुए। और शाही किले के बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें, जितना जानते हैं, मैं भी इतना नहीं जानता। तो यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत हिस्टोरिकल बंदे हैं मगर जो आप जर्नल चीज़ हैं इसके हवाले से हमें बताइए। यहाँ पर आप खड़े हैं ये ब्रिटिश बैरक है। अच्छा ये जो तामीर हो गया? हाँ जी, तमीर पहले से ही है। हाँ। अब दोबारा तमीर कर रहे हैं, इसको रिपेयर कर रहे हैं। हाँ। असली हालत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। ये अंग्रेजों ने बनाया था। हाँ। और यहाँ पर वो गोला बरूद भी रखते थे और
कैदियों को भी यहाँ पर कैद करते हैं। अच्छा, ये जो शीश महल है इसकी क्या कहानी है? मलका नूर जहां का? नहीं, हाँ। ये मुमताज़ बेगम के लिए शाहजहां ने तमीर करवाया था। अच्छा, मुमताज बेगम के लिए। उसको रॉयल पैलेस भी कहते हैं। जी जी। इसके अंदर बड़े शीशे वगैरह पत्थर कीमती लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो रोशन, एक मच्छर लगाई जाए तो वो रोशन हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये कितना हिस्सों में है? इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें ये 56 एकड़ में है। 56 एकड़ में है हाँ। इसके अंदर दीवाने आम बना हुआ है, जहाँ पर लोग खड़े होते थे और बादशाह बैठता था, उसके ऊपर वो बैठ के फैसले करता था। उसके साथ ही पीछे जंगीरी आता है। हाँ, जंगीरी आता है हाँ। पीछे, वो जंगीर ने बनवाया था। उसके साथ ही दीवाने। अच्छा, ये कितना बादशाहों का ये बना हुआ है? ये 4 बादशाह हैं, उन्होंने बनाया। अकबर बादशाह है, उसका बेटा आगे, फिर जंगीर आया उसने बनाया, फिर उसके बाद शाहजहां आया उसने बनाया, फिर उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब आया उसने बनाया। यानी ये कि जो आप पीछे देख रहे हैं बादशाह मस्जिद, ये 1673 में तैयार हुई है। ये औरंगजेब ने तमीर की थी। औरंगजेब ने? हाँ जी जी। ये जो है ये आलमगीरी दरवाज़ा है, ये भी आलमगीर ने तैयार किया था। हाँ, ये बरूक खाना है। सही है। इसके पीछे ये मोती मस्जिद है। इस तरह की 3 मोती मस्जिद हैं जो वाला वो तमीर हुई है, शाहजहां ने कराई। शाहजहां ने करेगी। एक हमारे इधर लाहौर में है, एक ताजमहल आगरा में बनी हुई है, एक लाल किला जो है इंडिया के अंदर, उसके अंदर बनी है। ये तीनों एक ही जगह की बनी हुई है। अच्छा, ये जो बादशाह तामीर, ये मुस्लिम बादशाह थे या गैर मुस्लिम? नहीं नहीं, ये सब मुगल बादशाह मुसलमान थे। अच्छा। और उनकी तमीर है सर। अच्छा, ये उनकी तामीर है। ये बस सिर्फ ये ब्रिटिश बैरक जो है ये अंग्रेजों ने बनाई है, बाकी बाकी ये मुस्लिम बादशाह सारे मुसलमानों ने बनाए। बहुत। हाँ? जी नाज़रीन, ये अभी हम शहर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मकबरा पे दिखाते हैं, आपको ज़ियारत भी करते हैं। और ये जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह के बादशाही मस्जिद, और क्या दौर होता होगा और किस मोहब्बत से देखें कि उस दौर के मुताबिक इतना प्यारी मस्जिद, और बहुत ही ईमान वाले बादशाह थे और कितना मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। और ये देख सकते हैं कि उस बादशाही मस्जिद के मैं तो हैरान हूँ कि उस दौर के मुताबिक इतना प्यारी मस्जिद। कुरान पाक सोने से लिखा गया है और 30 पारे। हाँ भाईजान, ये कितने की है ना? सर ये 200 रुपए की दे रहे हैं। अच्छा, आवाज तो आप बड़ी बड़ी दे रहे हैं। बस सर ऐसे ही है ना। हाँ। ये हमारी जो है इनकी आम है, इनकी नहीं अच्छी है इनके। अच्छा, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, पाकिस्तान जो जिंदाबाद। बुलाए ना, जो व्यूअर आपको देख रहे हैं, बुलाए ना। आपने किसी को बताना नहीं है, ऐनक 200 में ले जाएं। जो बच्चे हमसे ऐनक लेकर जाएंगे वो स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आएंगे। कॉलेज के बाद वो बेटे यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, 4 GPA लेकर आएंगे। जो टीचर ऐनक लेकर जाएगी उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। जो बच्चे ऐनक लेकर जाएंगे वो स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आएंगे। कॉलेज के बाद वो यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, 4 GPA लेकर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।